Hello everyone, my name is Akhil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about parts of the brain. So let's begin with today's topic. Students, the human brain is divided into three major parts. Human brain three major parts में divided होता है. The first part will be cerebrum, second part will be cerebellum, third part will be brainstem. So now we'll discuss one by one each part. The first part is cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain that covers the upper and front part of the skull. As you can see here in the image, yes, here this front part and all the upper part, as you can see here, this is all cerebrum students. ये होता है हमारा cerebrum होता है जो कि सामने से front part और upper part पूरा cover करके रखता है, जिसकी वजह से इसको हम largest part of the brain करके बुलाते हैं. Okay, now we'll see the functions of cerebrum. It is responsible for all conscious thought, sensory interpretation, language, memory and voluntary movement. Cerebrum students ये conscious thought के processing के लिए responsible रहेगा, sensory interpretation करेगा, जो भी sensory information आएगा body के सारे tissues से जो भी sensory information आता रहेगा वो सारे sensory से information को interpret करेगा, read करेगा. Okay, the second thing is language इसको प्रोसेस करेगा, मेमोरी प्रोसेस करेगा एंड सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी ये प्रोसेस करेगा स्टूडेंट्स. ओके, यस. सो नाउ विल डिस्कस in detail about the structure of cerebrum. Okay, yes. The first part of the cerebrum is hemispheres. It is divided into cerebrum is divided into right and left cerebral hemispheres, which are again connected by corpus callosum. The left hemisphere typically controls the right side of the body. The right hemisphere controls the left side of the body. Okay, as you can see here in the image, yes, here we have got at center we have got a structure called as corpus callosum. That is nothing but band of nerve fibers. Okay, corpus callosum नाम का एक structure होता है, internal structure. दिस कॉर्पस कैलोसम ये क्या करेगा, सेरेब्रम के दो पार्ट्स होंगे, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. इन दोनों पार्ट्स को ये कनेक्टेड रखता है स्टूडेंट्स. जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहेगा वो हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा, जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहेगा वो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा स्टूडेंट्स. ओके, यस, एंड दीज बोथ हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम. ओके, so further next part of the cerebrum is four lobes. Each hemisphere has four different lobes. Okay, right lobe या left lobe हो सकता है, sorry the right hemisphere हो सकता है या left hemisphere हो सकता है. each hemisphere के पास चार lobe होते हैं students. Okay, the first lobe is frontal lobe. Frontal lobe is responsible for planning, motor control, personality, problem solving, speech production. Okay, जो भी यहाँ पे फ्रंटल लोब है स्टूडेंट्स, जो इस एरिया को जो फ्रंटल लोब कहकर बुला रहे हैं हम, इस फ्रंटल लोब का काम क्या रहेगा, मोटर कंट्रोल मेंटेन करेगा. ओके, प्लानिंग में हेल्प करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हेल्प करता रहेगा. ओके, या स्पीच कंट्रोल में हेल्प करेगा. सो दोज ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द फ्रंटल लोब. जितना भी जो भी प्लानिंग का या हो सकता है मोटर कंट्रोल या प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्पीच प्रोडक्शन का हो सकता है, ये सारा का सारा फ्रंटल लोब में ही प्रोसेस होता रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, यस. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, अगर हमें किसी चीज की प्लानिंग करनी है या कोई चीज के किसी ट्रिप के लिए प्लान करना रहेगा या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन ढूंढना रहेगा, ये सारा का सारा फंक्शन हमारे फ्रंटल लोब में ही होता रहेगा. ओके, यस. द सेकेंड लोब इज पेरिएटल लोब, जहाँ पे सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा. सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि टच, अगर हम किसी चीज को बिना देखे भी अगर हम टच कर ले एंड सडनली पहचान जाए कि वो चीज क्या है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे इंटरप्रेट होगा, हमारा पेरिएटल लोब में ही इंटरप्रेट होगा. लाइक इफ आई कैन शो यू इन द इमेज, हियर वी हैव गॉट द पेरिएटल लोब. ओके, दिस इज द पेरिएटल लोब. सो it will interpret the sensory information, like टेम्परेचर को इंटरप्रेट करेगा. टेम्परेचर को इंटरप्रेट करेगा कैसे, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है सो सडनली हम क्या करेंगे, छांव में चले जाएंगे. कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसको इंटरप्रेट कर लिया कि बहुत ज्यादा गर्मी है एंड हमारा स्किन जल सकता है. पेन को इंटरप्रेट करेगा, जब भी किसी चीज कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज जो हम लोगों को पेन कॉज कर सकती है, अगर वो पेन कॉज कर रही है तो इमीडिएटली वो पेन बोल के हम लोगों को मालूम चल जाता है, पता चल जाता है कि ये पेन है बोल के.
वो भी कहाँ पे मैसेज हम लोग को इंटरप्रेट होगा, वो पेरिएटल लोब में ही इंटरप्रेट होगा। द थर्ड लोब इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सुनने के लिए, मेमोरी के लिए एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसेशन के लिए भी टेम्पोरल लोब रेस्पॉन्सिबल रहेगा। द फोर्थ लोब इज ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब प्रोसेसेस द विजुअल इंफॉर्मेशन। ओके, जो भी चीज हम देखेंगे, हियर वी हैव गॉट ऑसिपिटल लोब। जब भी किसी चीज को हम देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी बुक को देखकर कहा कि ये बुक है, कोई ट्री को देख के कहा कि यस दिस इज अ ट्री, दिस इज अ बस। ओके, सो ये इंटरप्रिटेशन करना कि वो चीज क्या है, ये कहाँ पे हो रहा है, सारा इंटरप्रिटेशन या प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रहा है, ऑसिपिटल लोब में ही हो रहा है। ओके, यस। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेरेब्रम इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, जो भी यहाँ पे रिजेस या जो भी फोल्डिंग्स देख रहे हो आप लोग इस इमेज में, इनको हम क्या बोलेंगे, गायरी या सल्काई करके बुलाएंगे। ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारा सरफेस बढ़ाने के लिए। ओके, जितना भी जो भी ब्रेन का जो सरफेस एरिया रहेगा, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है ये गायरी एंड सल्काई। इनको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहकर बुलाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेबेलम, जिसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेरेबेलम इज सिचुएटेड अंडर द सेरेब्रम। एग्जैक्टली सेरेब्रम के नीचे ही प्रेजेंट होता है एंड हेड के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। एज यू कैन शो यू इन द इमेज, हियर वी हैव गॉट द पार्ट दैट इज सेरेबेलम। ओके, इसको बोलते हैं हम सेरेबेलम कहकर बुलाएंगे। सो दिस सेरेबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट। जो भी वॉलेंटरी मूवमेंट्स होंगे हमारे बॉडी के, लाइक हमारे कंट्रोल में रहने वाले मूवमेंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, बात करना, ओके, राइट साइड देखना, लेफ्ट साइड देखना, ऊपर नीचे देखना, ये सारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके रखता है हमारा सेरेबेलम। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम चल रहे हैं, चलते वक्त हम पहले राइट लेग, उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट, राइट के बाद लेफ्ट, जो भी हम स्टेप्स जो रखते हैं ये कोऑर्डिनेशन में होता है स्टूडेंट्स, राइट। सो ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है हमारा सेरेबेलम। ओके, एंड बॉडी का पोस्चर मेंटेन करेगा, बैलेंस बना के रखता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑल द sensory input या fine tunes of the motor activity. Okay, yes. The third part of the brain is the brain stem. The brain stem is nothing but, as you can see in the image, here we have got the brain stem students. इसको brain stem कर बुलाएंगे। brain stem फिर से 3 parts में डिवाइड होगा। इसके अंदर होंगे 3 parts होंगे। पहला होगा pons, थर्ड होगा medulla oblongata और एक आएगा जो होगा mid brain। Okay, so this brain stem is responsible for connecting the cerebrum and cerebellum to the spinal cord. Okay, ये cerebrum और cerebellum को कनेक्ट करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। So ये इसका मेजर फंक्शन होता है मिड ब्रेन का या पॉन्स का या मेडुला ऑब्लोंगेटा का। इसके और कई सारे फंक्शंस हो गए स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस देम वन बाय वन। Like midbrain is responsible for motor movement, movements of the eye, auditory और visual processing। जो भी मोटर मूवमेंट रहेगा हमारी बॉडी का, चलना फिरना एंड ऑल, ये सारा का सारा इसमें मिड ब्रेन का हेल्प होगा हम लोगों को। मूवमेंट ऑफ द आई या ऑडिटरी या विजुअल प्रोसेसिंग, ये पूरा मिड ब्रेन की मदद से ही होता है। Pons will relay the signals between the cerebrum और cerebellum के बीच में जो भी सिग्नल्स पास होंगे ये सारा पॉन्स के थ्रू ही होता रहेगा। स्लीप, रेस्पिरेशन, फेशियल सेंसेशन, ये इसके अलग फंक्शंस होंगे स्टूडेंट्स। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा, द लोवेस्ट पार्ट दैट रेगुलेट्स द वाइटल इनवॉलेंटरी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्सेस। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा स्टूडेंट, ये इनवॉलेंटरी फंक्शंस को मेंटेन करेगा। जैसे कि इनवॉलेंटरी फंक्शंस किसको कहेंगे हम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ब्रीदिंग हो सकता है, हार्ट रेट हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओके, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इन सब का कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा के हाथ में रहेगा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा मेंटेन करेगा स्टूडेंट्स। ओके, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। If you have any doubts or any question related with this topic, please feel free to put all your doubts or questions in the comment box students. Okay, yes, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है so please hit the like button and share करो इस वीडियो को with your other friends as well. Okay, so if you are new to this channel, please subscribe to my channel. Okay, so we'll meet in the next video with more exciting videos. So till then, stay safe, keep learning, keep sharing. Thank you students.